ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، لکھ لیں، کتاب الآثار اٹھا کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، لکھ لیں ایسے لکھ لیں. ہاں بھائی لکھ لیں، کتاب الآثار میں موجود ہے، حنیفہ نے اجتہاد کیا. ٹھیک ہے. اہل حدیث کا مسئلہ ثابت ہے کہاں؟ اہل حدیث کا مسئلہ کہاں ثابت ہے؟ میں بتاتا ہوں اہل حدیث کہاں کا رفع الیدین کرتا ہے. ٹھیک ہے، سنیے بھائی لوگ، اور یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ، اپنا مسئلہ بھی ثابت کریں گے. صرف ہمارا مسئلہ غلط ثابت کر دینے سے ان کا مسئلہ تھوڑی صحیح ثابت ہو جائے. کسی کو غلط ثابت کر دینے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں تو اب میرا سوال ہے اہل حدیث کہاں کا رفع الیدین کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی جو تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں جس پر اجماع ہے، اس کے لیے وہ اختلافی رفع الیدین نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے کا مسئلہ. ٹھیک ہے، یہاں پر اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں، حنفی اور مالکی نہیں کرتے. دوسری جگہ ان لوگ جو ہے جب تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب وہ جو مسبوق ہوتا ہے، جو بعد میں شامل ہونے والا ہے نماز میں، 1 یا 2 یا 3 رکعت جب ختم ہو جاتی ہے، جب شامل ہوتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی بقیہ نماز کو پورا کرنے کے لیے، اس وقت بھی یہ رفع الیدین کرتے ہیں. تو یہ رفع الیدین کہاں سے کرتے ہیں یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا. اتنی جگہ پر جو رفع الیدین ہوتا ہے وہ ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ تو پھر اس پر معارضہ ہوگا، اور یہ دلیل دیں بھائی کون سی حدیث ہے ان کے پاس میں، کون سی قرآن کی آیت ہے، پھر ہم پر اعتراض کریں گے بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے کہ نہیں ہے. ہمارا تو اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہاد خود یہ بھی مانتے ہیں کہ نص کے تابع ہوتا ہے. تو پھر یہ کہنا تو سراسر بے وقوفی ہے کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے مسئلہ. اور یہ بات کہ بھائی رفع الیدین کرتے تھے منسوخ ہو گیا، تو یہی تو اس کی دلیل ہے نا بھائی، منسوخ ہونے کی، کہ کرتے تھے چھوڑ دیا، نہیں کیا تو آ گئی نا بھائی، دلیل آ گئی نا چھوڑنے کی. اور جب چھوڑنے کی دلیل پر بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہو جائے گی. تو بھائی یہ مسئلہ ہے کہ میں نے جواب دے دیا الحمدللہ سارے سوالات کے، کہ نص سے کوئی دلیل نہیں، تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی قرآن اور حدیث کے تابع ہی ہوتا ہے اجتہاد. تو نص ہے موجود ہے، کس نے کیا اس کا بھی جواب دے دیا، کب کیا اس کا بھی جواب دے دیا. اہل حدیث کا مسئلہ ثابت ہے تو ثابت کرے الحمدللہ. ابھی انہوں نے کہا آپ کے سب کے سامنے، میں نے بتایا کتنی جگہ رفع الیدین کرتے. البانی صاحب اور زبیر البانی صاحب اور اپنے ہر تکبیر نہیں وہ کیا نام ہے ان کا جو ابھی پونا والے ابو زید ضمیر صاحب سجدوں میں رفع الیدین بھی بولتے ہیں. بھائی وہ بھی ثابت کرنا پڑے گا نا، اختلافی رفع الیدین ہے تو ثابت الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی ہوا میں باتیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے آگے. تو الحمدللہ میرے خیال سے کوئی سوال باقی ہے بھائی تو اس کا جواب دے دیا جائے، وقت باقی ہے تو. بھائی وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب الآثار میں لکھا ہوا ہے، کتاب الآثار میں لکھا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے ان کی کتاب میں ان کا مسئلہ لکھا اور تواتر سے چلا آ رہا ہے. اگر نہیں بھی لکھتا نا، اگر امام محمد نے نہیں بھی لکھا ہوتا تو کسی بھی امام نے کسی بھی صدی میں کسی بھی ہجری میں امام ابو حنیفہ کا مسلک رفع الیدین کرنا لکھا ہی نہیں ہے. سب نے یہ لکھا ترک رفع الیدین کا مسئلہ. بھائی ٹائم ہوا کہ اور بولوں؟ 1 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے میرے سوالات کے جوابات دینا شروع کریں. بسم اللہ. چلو بھائی ٹائم دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے کو 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور بھائی نے 5 منٹ میں صرف 1 یا 1.5 منٹ موضوع پہ رہے، اس کے علاوہ پورا موضوع کے باہر تھے. کیونکہ یہاں موضوع تھا کیا رفع الیدین منسوخ ہے. یہاں ہم نے، آپ ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، ہم نے کہا تھا ہم آج جو بیٹھے ہیں رفع الیدین کی منسوخیت پر بیٹھے ہیں، رفع الیدین کے منسوخ ہونے پر. اس کے وجود کا تو آپ نے اقرار کر لیا، اور الحمدللہ بھائی نے ہم سے جو سوال کیا ہے منسوخ کے تو مدعی آپ ہیں، ہمارا تو منسوخ کا دعویٰ ہی نہیں ہے. تو بھائی کو چاہیے کہ منسوخ پر بات کریں، رفع الیدین کے وجود پر. یہاں رفع الیدین کرنے پر بات نہیں ہے، رفع الیدین نہ کرنے پر بات ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، اس پر بات ہے. صحیح بات ہے جی الحمدللہ. اور پھر بیچ میں ڈسٹرب مت کرو ورنہ ہم لوگ بھی بیچ میں بولیں گے. پھر نہیں، یہ کھیکی ہم لوگ کو بھی آتا ہے، ایسا نہیں، غلط ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے. وقت آپ سوال لکھ لیں بھائی. اصول طے کیا تھا نا، ایک بات کریں گے. بھائی میں بات کروں نا بھائی، بیچ میں کھیکی کرنا آپ کے ٹائم پہ ہم لوگ نے نہیں کیا نا. سوال لکھ لینے دینا. موضوع ہے کیا رفع الیدین منسوخ ہے، اور آپ نے کہا کہ رفع الیدین اہل حدیثوں سے، اور آپ نے شاید میری بات یا تو دھیان سے سنی نہیں تھی. آپ نے کہا کہ اور ابھی پچھلے ریکارڈ اس کو تو ریوائنڈ کر لینا. ابھی جو میں بول رہا ہوں نا اس کو تو ریوائنڈ کر لینا. نہیں پہلے جو میں نے بولا تھا وہ ثابت نہیں ہے. آپ نے بولے میں نے سننے میں کچھ غلطی ہوئی مجھ سے، ایسے ہی بولے نا. نہیں آپ سے ہاں وہی تو میں بتا دیتا ہوں نا کیا غلطی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب میں نے بھائی کو کہا کہ اہل حدیث تو یہ منواتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس ترک رفع الیدین کی دلیل، منسوخ کی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے اسے اجتہادی کہہ کر یہ تسلیم کر لیا، اور یہاں اہل حدیثوں کا مسئلہ ثابت ہو گیا. یہاں میں نے مسئلہ رفع الیدین کی بات ہی نہیں کی تھی، یہاں میں نے مسئلہ دلیل ناسک کی بات کی تھی.
आपने शायद मेरी बात समझे ही नहीं, और भाई कह रहे रिवाइंड कर ले, तो मैं चाहता हूँ अगर इस पर आप रिवाइंड करवाना चाहते हैं तो आप इस पर रिवाइंड भी करवा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर भाई ने कहा कि कुरान इजमा और कयास तो नस के ताबे, कुरान और हदीस के ताबे। बेशक मैं कहता हूँ इजमा और कयास तो कुरान और हदीस के ताबे है, लेकिन क्या मुकम्मल कुरान और हदीस को आप नस मानते हैं? क्या कुरान और हदीस को आप नस मानते हैं? आप ज़रा नस की तारीफ़ तो करें कि आपके नज़दीक नस है क्या? आप ज़रा नस की तारीफ़ तो करें कि आपके नज़दीक नस है क्या? आप क्या मुकम्मल कुरान और हदीस को नस मानते हैं? फिर आपने कहा कि वहाँ दलील तो मौजूद है। अगर दलील मौजूद है तो इज्तिहाद किस बात का है? मैं कहता हूँ ज़रा आप अपने शुरूते इज्तिहाद बयान करें। आज आप कब इज्तिहाद करते हैं? शुरूते इज्तिहाद बयान करें कि आप इज्तिहाद करते कब है? भाई ने कहा दलील मौजूद है, मैंने कहा नस मौजूद नहीं है। आपके नज़दीक अगर खबरे आहद को आप नस मानते हैं, अब आहद भी कहा जाता है, खबरे आहद भी कहा जाता है, खबरे आहद को, खबरे गरीब को, क्या आप मानते हैं इसे नस मानते हैं? अगर आप इसे नस मानते हैं तो तस्लीम करें आप क्या आज इसे नस मानते हैं, या तो फिर ये कुरान और हदीस का हदीस में मौजूद है, दलील मौजूद है, ये कहने का धोखा ना दें। फिर भाई ने काफ़ी धोखे दिए कि कुरान और हदीस के ताबे, कुरान और हदीस को तो आप नस मानते ही नहीं है। आप मुकम्मल पूरी कुरान और हदीस को नस माने तो कहे ना कि कुरान और हदीस में मौजूद है इसलिए इसमें इज्तिहाद है। आप ज़रा नस बताएं। मेरा भाई से सवाल है, शुरूते इज्तिहाद भी बयान करें। फिर भाई का अगला सवाल क्या था? हाँ, फिर भाई ने कहा है कि किताबुल आसार में अबू हनीफा का इज्तिहाद मौजूद है। भाई मैं कहता हूँ अबू हनीफा पर से ये बात समझ नहीं, वो भाई देखो ये कोई हद नहीं है आपके उससे। मैंने आपको नहीं बोला कि आप बोलो, मैंने बोला अपनी तरफ से बोला, आपने नहीं बोला इसके लिए मैंने बोला। तो भाई आप दिल में बोल सकते हैं, आप दिल में बोल सकते हैं, ये फिर मुझे चलो आपकी बारी में हम भी मुझे डिस्टर्बेंस होता है। हाँ जी ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ ज़रा किताबुल आसार की हैसियत तो बयान करें आज के अबू इमाम मोहम्मद ने जो किताब लिखी है किताबुल आसार, ज़रा अबू हनीफा की नज़र में इमाम मोहम्मद की क्या हैसियत है आज वो भी बता दें, और फिर किताबुल आसार की क्या हैसियत है वो भी बता दें, और अबू हनीफा की इमाम मोहम्मद की नज़र में क्या हैसियत है वो बता दें, और इमाम मोहम्मद की अबू हनीफा की नज़र में क्या हैसियत है वो बता दें, और फिर किताबुल आसार की हैसियत बता दें। फिर इनका अगला सवाल क्या था? दो तीन रकात से खड़े होकर। हाँ, तो भाई ने कहा 2-3 रकात से खड़े होकर। तो आपने तो जब असबात मान लिया कि रफ़ायदन करते थे, क्या सवाल मौजू से बाहर है हम पे? हाँ, ये सवाल ही इनका मौजू से बाहर है क्योंकि यहाँ बात ही मनसूख पर है। तो भाई ने कहा दूसरी रकात में से खड़े होते वक्त रफ़ायदन करते हैं, तो इसका वजूद तो आपने खुद माना है, आप इसका मनसूख तो दिखाएं, आप नासिक ना ही दिखा सकते हैं। पता ही चला कि वो हमेशा करते आए। फिर इन्होंने कहा अगर अबू हनीफा ने पहला इज्तिहाद किसने किया? अबू हनीफा ने। अबू हनीफा की ज़रा उम्र तो बताएं, पैदाइश तो बताएं। 5 मिनट हो गया। अबू हनीफा से अरे भाई मैं बताऊँ आधा मिनट करोगे, बीच में 2 लोग ने आधा मिनट दे दो, वो तो मौका दो, आधा मिनट। अरे भाई आधा मिनट आएगा ना, अगली टर्न आएगी ना, वो टर्न पूरा हो जाएगा ना, बात अगली टर्न आएगी ना भाई, मुकम्मल हो जाता है जी। मेरा वक्त है ना, आधा मिनट जो आधा मिनट है, बोलिए। जाया किया गया वो तो दे दें भाई जी। तो मैं कहता हूँ कि ज़रा बताएं मुझे कि अबू हनीफा, भाई ने ये तस्लीम कर लिया कि अबू हनीफा के पहले किसी ने रफ़ायदन को नासिक करार नहीं दिया। मैं कहता हूँ ज़रा अबू हनीफा से वो किताबुल आसार से इबारत भी पेश करें और मेरा मुतालबा भी साबित करें, और पता ये चला अबू हनीफा ने किस हिजरी में किया। पैदाइश 80 हिजरी में, भाई ने तस्लीम कर लिया। 80 हिजरी के पहले किसी ने इसमें इख्तलाफ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। साहबा से किसी ने इज्तिहाद नहीं किया, साहबा से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे साहबा इस बात पर मुतमईन थे कि रफ़ायदन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए। माशाअल्लाह भाई, मैंने जो सवालात उठाए थे एक का भी जवाब नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मैंने बोला नज़्क़ इज्तिहादी है, तो इन्होंने इमाम अबू हनीफा पे उसको थोपा। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास में इमाम अबू हनीफा की तहरीर है, मैं इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, हनफी फ़िक़्ह का मुक़ल्लिद हूँ, और मैं हनफी फ़िक़्ह के उन अक़वाल का जिन पर फतवा है उनका मुक़ल्लिद उनका, तो मैं इमाम अबू हनीफा का फतवा पेश करूँगा। और वो चूंकि हमारे यहाँ वही मुफ्ता भी मसला है, तो मैं इमाम अबू हनीफा का मसला पेश करूंगा। मैं उससे पहले का किसी का मसला क्यों पेश करूं? इमाम इब्राहिम नखई ने अगर किया है तो मैं क्यों उसको पेश करूं, है ना। उससे पहले अगर किसी और ने अलकमा ने किया है तो मैं उसको क्यों पेश करूं? मेरे पास जो सबूत है मैंने वो पेश किया, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा सवाल, मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया, ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि भाई नस के ताबे होता है ना, ये मानते हैं नस के ताबे होता है ना। अब जब ये खुद मानते हैं नस के ताबे, तो फिर मुझसे दलील क्यों मुतालबा करते हैं? नस के ताबे हैं, अगर नस के ताबे मानते हैं, सवाल नहीं समझे भाई, आप जवाब दें तो तब समझ में आएगा ना इंशाअल्लाह। जवाब तो दें इसका। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नस्ख़ इज्तिहादी है, और इज्तिहाद की वजूहात होती है ना। हम ये कहते हैं भाई साबित था, हमारे पास दोनों किस्म की हदीसें आ गई,
तो हमने इज्तिहाद पर अमल किया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने। हमने ये थोड़ी कहा हदीस में नहीं है। क्यों हम पर इल्जाम लगा रहे हैं भाई? हमने ये कहा कि हदीस में नहीं है। मैंने अपने पिछली रिकॉर्डिंग में भी ये कहा है, अभी भी ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह दलीलें आएंगी तो उस पर भी बात होगी, हदीसें आएंगी उस पर भी बात होगी। फिर ये क्यों कहना कि नस में नहीं है, नस में नहीं, बार बार इस तरह की बात करके धोखा देने की कोशिश ना करें, वक्त जाया हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, कोई और ना बोले। दूसरी बात, अब जब मैंने इनसे ये बात की कि भाई मेरा मसला गलत साबित कर देने से आपका मसला सही साबित थोड़ी हो जाएगा, तो अब वो भाग रहा है, उसको मौजू से बाहर करार दे रहे हैं। तो ये तो भागने के तरीके हैं। भाई मेरा मसला गलत साबित हो, सही मसला कौन बताएगा? सही भी बताना जरूरी है कि भाई ऐसी गलत मसले पे अमल करने छोड़ देंगे उम्मत को? भाई सही मसला भी तो बताना पड़ेगा। तो भाई मेरा फिर से मुतालबा है कि जहां जहां आपके अंदर इख्तलाफी रफुल यदैन का मसला है, कोई सजदे में बोलता है, कोई रुकू में बोलता है, कोई तीसरी रकत पे बोलता है, कोई मसबूक को बाद में अपनी रकत मुकम्मल करने के लिए बोलता है, सबकी दलीलें पेश करें, देनी पड़ेगी। और ये भी बताना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी रफुल यदैन किया, तभी तो साबित होगा ना। अपनी आखिरी नमाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज भी इन इख्तलाफी रफुल यदैन के साथ की, तब साबित होगा भाई। ऐसे थोड़ी साबित होता है, किसी के बोल देने से साबित हो जाता तो फिर तो बात ही नहीं थी। अब कादियानी अपने मन से बोलता है वो रसूल है, अब क्या मान लेंगे? भाई साबित करना पड़ेगा ना। तो ऐसा किसी हवा बात करके साबित होने का नहीं कुछ। ठीक है, अगर आपका मसला साबित है तो दलील दे, और साहिल बनकर आए तो साहिल की ऐसी गुफ्तगू करें। ठीक है, अब इन्होंने मुझसे पूछा रफुल यदैन मनसूख है, मैंने उसका जवाब पहले ही जुमले में दे दिया था। अब बोलते हैं कि मनसूख के लिए जो बताया इज्तिहाद, अब खुद इन्होंने मुझसे क्या कहा जब मैंने इतनी सारी बातें की तो कहा मौजू से बाहर है। अब क्या शरायत जो ये मुझसे मांग रही है मौजू से बाहर नहीं है? नहीं तो फिर मैं मेरे वक्त में मैं भी बोलूंगा, कहता हूँ, मेरे वक्त में जवाब दूंगा, मैं मेरे वक्त में जवाब दूंगा, मैं मेरे वक्त में जवाब दूंगा, मैं मेरे वक्त में जवाब दूंगा। अब कहते हैं मसला साबित हो गया। अरे भाई क्या मसला साबित हो गया? आपने साबित ही क्या किया अभी तक? सवाल करने के अलावा साबित ही क्या किया? मुआरिज, दो मुआरिज हदीसें होंगी, करने की नहीं करने की, आप किसको पसंद करेंगे, किसको चूज करेंगे? यही तो मसला इज्तिहादी है। ठीक है, अब मैंने पूछा था कितनी जगह आप रफुल यदैन करते हैं, उतनी जगह की दलील दो, नहीं आई। दलील मौजूद है तो इज्तिहाद क्यों? इसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि दलील मुआरिज है, इसके लिए इज्तिहाद है। खबरे वाहिद को नस नहीं मानते आप, खबरे वाहिद को नस मानते हैं, उसका जवाब दे। इमाम मोहम्मद की हैसियत क्या है? हमारे नजदीक तो इमाम है माशाअल्लाह। अबू हनीफा की नजर में सवाल ये पूरा मुकम्मल करें। इमाम मोहम्मद की हैसियत क्या है? अबू हनीफा की नजर में मैंने ये पूरा कहा है। ठीक है ना, आप पेश करें इमाम अबू हनीफा की नजर में। हमारी नजर में उनकी हैसियत मोतबर है। अरे सवाल साहिल का सवाल ही दूसरा, आप जवाब ही दूसरा दे रहे हैं। चलो ठीक है, आप मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें, आप मुकम्मल करें। अगर इमाम अबू हनीफा की नजर में इमाम मोहम्मद मजरूह है तो साबित करें ना। हमारी नजर में तो मोतबर है, मैंने जवाब दे दिया इसका। किताबुल आसार की हैसियत हमारे नजदीक मोतबर है। अगर किताबुल आसार की हैसियत इमाम अबू हनीफा के नजदीक ना मोतबर तो साबित करे, हवा में बात ना करे। और क्या सवाल किया था भाई ने? हाँ, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा था अहनाफ के नजदीक इज्तिहाद किस वक्त होता है, उसकी दलील नस। इन्होंने कहा था अहनाफ के नजदीक इज्तिहाद उस वक्त होता है जब नस नहीं होती। मैंने इनसे हवाला मांगा था, हवाला नहीं दिया। इन्होंने बोला नस से कोई दलील नहीं है। मैंने इनसे सवाल किया था कि क्या इज्तिहाद नस के ताबे है या नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। अहले हदीस का मसला साबित है, मैंने बोला साबित करो, जवाब नहीं दिया। अहले हदीस के उसूल है कि इज्मा और कयास जो है वो इज्तिहाद जो है वो उसके ताबे है। फिर भी हम उससे दलील का मुतालबा कर रहे हैं, दलील का मुतालबा कर रहे हैं। कितनी जगह रफुल यदैन करते हैं वो भी नहीं बताया, और दलील मौजूद है तो इज्तिहाद क्यों किया उसका जवाब मैंने दे दिया कि मुआरजा है, दलाइल में मुआरजा मौजूद है, इसके लिए किया। शरायत ने मुझसे मुतालबा करे, शरायत का मौजू से खारिज है, इसके लिए मैं नहीं समझता उसके लिए टाइम वेस्ट करना जरूरी है। हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने फिर महज अपना वक्त ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने सिर्फ ये मुतालबा किया मुझसे कि भाई रफ़ा यदैन किन औकात पर है, क्या है। मैंने कहा यहाँ मौजू ही है कि क्या रफ़ा यदैन मनसूख है, इसके वजूद को तो आपने इनकार कर लिया। अगर आप पूछते हैं किन औकात पर है, किन औकात पर है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ मनसूख के पहले किन औकात पर अमल होता था? आप इसकी दलील दे मुझे कि मनसूख पे पहले किस औकात पर होता था, और मनसूख के जो इज्तिहाद है वो हर एक औकात के आप मुझे दिखाएं। ठीक है, ये आपके जिम्मे।